ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے. میں چاہتا ہوں انگلش میں اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے دیٹ وڈ بی گریٹ. اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو شروع کریں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے, اور ایک گواہ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود, سشیل بھائی ٹھیک اور ثنا بہن. انہوں نے ہمارے ڈاؤن کو بھی دیکھا اور آپ کو بھی دیکھا, انہوں نے ہمارے رونے کو بھی دیکھا اور ہماری برکت کو بھی دیکھا ہے. اور آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس زندگی میں ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہر ایک بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو کامیابی کا موقع ملے اور ایک اپرچونٹی ملے زندگی میں لینے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں؟ سسٹر جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک چیز بتانی ہے آپ نے. ایک اچھا ساتھی, ویری گڈ, ایک اچھا ساتھی, ایک اچھا ساتھی. اور کیا چاہیے ہمیں؟ دعائیا زندگی چاہیے. ویری گڈ, ایک چیز پرفیکٹ, دعائیا زندگی. اوکے, ویری گڈ, واو. ایک چیز کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. جیزس. واو واو, زوردار تالیاں. یہ جواب اس کا میں انتظار کر رہا تھا. بڑی چیزیں ہیں, جیزس ہے, اچھا جیون ساتھی ہے, اچھی صحت ہے, ایجوکیشن ہے, ان کے بغیر, اور کبھی کبھی پیسہ بھی. ٹھیک ہے, جب میں چھوٹا تھا میری یہ خواہش ہوتی تھی کاش میں کبھی جاؤں اور مجھے خزانہ مل جائے تاکہ میں سکسیسفل انسان بن سکوں. لیکن وہ خزانہ, وہ پیسہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا, ہمیں کامیابی نہیں دے سکتا. کبھی کبھی ہم سے سوچتے ہیں اچھی صحت, گڈ ہیلتھ ہو تو سب کچھ ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں ہمارے پاس علم ہو تو سب کچھ ہے. لیکن میرے عزیزوں, آج ہم ایک بات کو لے کر چلیں گے. آج ہم یہ دیکھیں گے وزڈم ایک ایسا ٹول ہے ہماری زندگی میں جو ہماری دوڑ کو, جو خداوند میں ہے, اس کو تیز کر دیتا ہے. ہماری دوڑ کو پہیے لگ جاتے ہیں, ہم اڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر وزڈم ہمارے پاس ہے تو. ہاللیلویا. اور میں چاہتا ہوں اس حوالے کو ہم پڑھیں گے پرووربز چیپٹر 3 ورس 13 to 18, and I want someone to read in English language. Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding. For the gain from her is better than gain from silver, and her profit better than gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, in her left hand are riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who lay hold of her. Those who hold her fast are called blessed. واو. میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں. مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے, کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے. وہ مرجان یعنی روبیز سے بھی زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر. What thing we can desire the best is wisdom.
उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। यही लोग चाहते हैं। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक हैं। दैट्स द वे ऑफ विजडम। ये विजडम का रास्ता है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। डैनियल वेबस्टर यहाँ के स्टेट्समैन रहे हैं। उन्होंने कहा एजुकेशन, नॉलेज इज नथिंग विदाउट विजडम। विदाउट बाइबल एजुकेशन एंड नॉलेज इज नथिंग। और मेरे अजीजों, क्या है विजडम? हम इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि विजडम है क्या। इसे हिंदी जुबान में कहते हैं बुद्धि और पंजाबी में कहते हैं सियानप। वो बड़ा बंदा सियाना है। उर्दू में हम कहते हैं हिकमत। और जब हम इब्रानी जुबान में इसको देखते हैं तो इसका मतलब है हुक्मा। ये हिकमत के करीब तरीन है और इसका मतलब है आप practical living and skillful living that honors God. एक skillful life जब आप जीते हैं, practical life जब आप जीते हैं और खुदा को ऑनर दे रहे होते हैं, that's wisdom. इन किस जुबान में? हुक्मा में। जो जूइश कॉन्टेस्ट है वो ये समझते हैं। आपको पता है जब खुदा ने बेजलेल को विजडम दी तो खुदा ने कहा कि तू टैबरनेकल को बनाएगा और इस तरह से बनाएगा। और खुदा मूसा को कहता है कि मैंने बेजलेल को खुदा के रूह से भर दिया है, मैंने उसे हिकमत दे दी है कि वो उसको बनाए। दैट वॉज अ प्रैक्टिकल एंड स्किलफुल लिविंग दैट ऑनर्स गॉड। इसे ग्रीक जुबान में कहते हैं सोफिया। और जो सोफिया का मतलब है, इसका मतलब है डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं, जब हम इस दुनिया से परे बियॉन्ड देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड विजडम। यीशु मसीह विजडम से भरे हुए थे और उन्होंने सलीबी मौत इसलिए सह ली, इसीलिए बर्दाश्त कर ली क्योंकि वो इस किलों की तकलीफ से ज्यादा वो हमारी बरकत को, हमें वो आसमान की बादशाही में देख रहे थे। उनकी रूहानी आंखों में हम नजर आ रहे थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीबी मौत को सहा। और बाइबल में कहते हैं विजडम इन द बाइबल इज नोइंग द ग्रेटेस्ट गोल इन योर लाइफ एंड चूजिंग द बेस्ट वे टू अचीव दैट गोल। देखिए, मैं अपनी जिंदगी में चाहता था कि मैं लॉयर बनूं, लेकिन खुदा का प्लान कुछ वंडरफुल था। मैं लॉयर बन भी गया लेकिन खुशी को पा नहीं सका, सक्सेस को पा नहीं सका। दुख, तकलीफ, कुर्ब हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन जब से मैंने यीशु को पाया है, जब से मैंने विजडम को पाया है, मेरी जिंदगी बदल गई है। आज मैं ये कहता हूं कि मेरी खुशी का प्याला लबरेज होता है। हालेलुया। और ये है विजडम जिसको हमें हर एक को इसकी जरूरत है। हम में से बड़े लोग समझते हैं मैं वाइज हूं और दूसरा बंदा बेवकूफ है। कैसे पता चलेगा कि सही वाइज बंदा कौन है? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आइज, फियर द लॉर्ड एंड शन ईवल। याद रखें, निशानियां हैं जो लोग खुदा से डरते हैं और जो बदी से किनारा कर रहे हैं, असल में वो हैं वाइज पीपल। जब मैं सिन में जिंदगी बसर कर रहा था तो मैंने बड़े दुख सहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को बहुत दुख दिए। मैंने अपने बेटे की वो खुशियां जिसका वो हकदार था,
उससे एक तरह से छीन ली वो खुशियां। लेकिन जैसे ही मैंने खुदावंद में जिंदगी बसर करना शुरू की, ना सिर्फ खुदा ने मुझे ब्लेस किया, ना सिर्फ मेरे बीवी बच्चों को, बल्कि आज खुदा मेरे वसीला से कौमों को ब्लेस कर रहा है। खुदावंद कहता है ना, तू अपने मुल्क को, अपने बाप की सरजमीन को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे देना चाहता हूं, और मैं तुझे बरकत बनाऊंगा। और आज हम अब्राहम की बरकत को देखते हैं। हालेलुया। और इसी तरह खुदा ने इस नाचीज बंदा को भी इस्तेमाल किया। आज हम गैर कौमों में खुदा इस्तेमाल करता है। और बात यह है, ये सारा फजल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। और मेरे अजीजों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि विजडम एक ऐसा टूल है जिसको लेकर आप कामयाब हो सकते हैं। और खुदा के कलाम में वाइज उस बंदे को कहा जा रहा है जिसके अंदर खुदा का खौफ है, क्योंकि प्रोवर्ब्स 9:10 में लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुद्दूस की पहचान फहम है, यानी अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। लेकिन जो बेवकूफ आदमी है, जो फूल है, वो खुदा का इनकार करता है। वो कहता है खुदा है ही नहीं। वो उस भोले कबूतर की मानिंद है जो बिल्ली को सामने देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि वो शिकार हो सके। और आज वो शैतान जो फाड़ने वाले बब्बर की तरह उन्हें फाड़ना चाहता है, वो उसके सामने अपनी आंखों को बंद करके मासूम पड़े रहते हैं। दैट्स फूल इन द आईज ऑफ गॉड। लेकिन जो खुदा पर भरोसा करता है, जो खुदा पर ट्रस्ट करता है, दैट्स वाइज पर्सन। हालेलुया। और वाइज वो है जो खुदा के हुक्मों पर सिर्फ सुनता ही नहीं है बल्कि उन पर अमल भी करता है, वो ओबे करता है। और यीशु कहता है कि वो ऐसा इंसान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। आज हम गा रहे थे, ओ खतरे दे टोए ते खोबियां चों है बाहर कड ले आया मैनू, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां नू उस तो वारी। और वो चट्टान कौन है? वो यीशु मसीह है जिस पर हमारे पांव आज टिके हुए हैं। याद रखें, जो बेवकूफ इंसान है वो उसको करेक्ट करेंगे तो वो सुनेगा नहीं, वो कहेगा आई नो। लेकिन जो वाइज पर्सन है वो करेक्शन को सुनकर सीखता है, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है और वो अपनी गलतियों से सीखकर वो मास्टर बन जाता है। हालेलुया। और हम ये देखते हैं कि वाइज जो है वो कम बोलता है, लेकिन जो बेवकूफ इंसान है वो बोलता रहता है। इसलिए जब हम ये देखना चाहते हैं कि खुदा वाइज किसको कहता है, तो मैं समझता हूं हमें प्रोवर्ब्स की बुक को पढ़ना चाहिए। प्रोवर्ब्स की बुक बताती है कि हु इज वाइज एंड हु इज फूल। सो मेनी वर्सेस आर टेलिंग दैट वेयर वी स्टैंड। अब दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो वाइज की कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फूल की कैटेगरी में आते हैं, और एक कैटेगरी इनसे भी बड़ी है, वो है विकेड पीपल। फूल को समझ नहीं होती, वो चलना चाहता है मे भी अच्छी राहों पर, लेकिन उसे समझ नहीं आती मैं कैसे चलूं। लेकिन जो विकेड है वो जानबूझकर बदी के रास्ते को चुनता है। और खुदावंद को सबसे ज्यादा नफरत विकेड आदमी से है, और उसका अंजाम जो है, द वे ऑफ विकेड इज डिस्ट्रक्शन बट द वे ऑफ वाइज इज फॉर एवर लास्टिंग लाइफ। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जो खुदा का कलाम कहता है कि विजडम जो है वो आपकी हमारी चीजों में, डिजायर्ड चीजों में सबसे बेहतर है, और विजडम के बहुत सारे रिवॉर्ड हैं। आज हम देखेंगे विजडम के क्या क्या रिवॉर्ड हैं। एक बंदे की मिसाल हम लेते हैं।
जैसे मैंने पहला सवाल आपसे पूछा, क्या आपको चाहिए, अगर एक चीज आपको चाहिए तो यही सवाल सोलोमन से, किंग सोलोमन से पूछा गया। खुदा रोया में उसको मिलता है और कहता है, सुलेमान क्या तू मांगता है, मांग। और उसने कहा, बड़ा हम्बल रहा, उसने इधर उधर की चीजें नहीं मांगी। उसने कहा, खुदावन तू मुझे हिकमत और दनाई दे दे, विजडम और अंडरस्टैंडिंग दे दे, ताकि मैं अपने लोगों का इंसाफ कर सकूं। और खुदावन ने कहा, मुझे पसंद आया है कि सुलेमान तूने ये चीज मांगी है, तूने उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने अपने दुश्मनों की मौत नहीं मांगी, तूने रुपया पैसा नहीं मांगा, तूने कुछ और चीजें नहीं मांगी, बल्कि तूने विजडम को मांगा। तो ये सारी चीजें मैं तुझे मुफ्त में देता हूं। विजडम तो मैं तुम्हें दूंगा ही, कि ना तुझसे पहले कभी हुआ, ना तेरे बाद कोई होगा, लेकिन इसके बाद मैं तुझे अकल, मैं तुझे लंबी उम्र, मैं तुझे इज्जत और दौलत सब कुछ दूंगा और पीस दूंगा। उसके टाइम में ना तो कभी जंग हुई और उसके टाइम में ना कभी किसी चीज की कमी हुई। कलाम कहता है कि वहां पर चांदी की कोई अहमियत नहीं थी, वहां पर सोने की चीजों में ही वो खाते पीते थे। हालेलुया। तो याद रखें कि कौन कौन सी चीजें विजडम के पीछे आती हैं। दौलत, ऑनर, पीस, लॉन्ग लाइफ, ये विजडम को फॉलो करते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी दुआओं में विजडम को मांगें, क्योंकि यही खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। प्रोवर्ब्स 3 चैप्टर उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, और इंसान की नजर में मकबूल, और तू अक्लमंदी हासिल करेगा। हालेलुया। और विजडम हमें बचाती है, मुसीबत से बचाती है। लेकिन विजडम को हम पाएं कहां से? अय्यूब कहता है कि सोना जो है वो हमें जमीन से मिलता है, हमें जो रूबीज मिलते हैं वो समंदर की तह से और पहाड़ों की चट्टानों से मिलते हैं, कोयला भी हमें गारों से मिलता है। लेकिन विजडम को हम कहां से ढूंढें? विजडम का रास्ता आसमान की तरफ से आता है। हालेलुया। कहां से आता है? आसमान की तरफ से विजडम का रास्ता आता है। और प्रोवर्ब्स 2:6 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसके मुंह से निकलते हैं। और आज राज की बात हमारे लिए यह है कि वो जो विजडम खुदा के मुंह से निकली है, खुदा के मुंह से जो निकलती है उसे क्या हम कहते हैं? खुदा का कलाम, खुदा का कलमा उसे हम कहते हैं, उसे लोगोस कहते हैं। और वो लोगोस जन्म लेकर इस धरती पर रहा और उसका नाम जीसस है। हालेलुया। सिस्टर ने कहा हमें जीसस की जरूरत है। तो विजडम रियल में वो कौन है? यीशु मसीह है। सुलेमान एक टाइप ऑफ क्राइस्ट था, लेकिन यीशु कहता है कि यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। यीशु की विजडम की हमें जरूरत है, लोगोस की जरूरत है। इस कलाम को, लिखे हुए कलाम को लोगोस कहते हैं। यीशु का नाम लोगोस है, और लोगोस के साथ एक और भी है जो हमसे हम कलाम होता है, और वो है रीमा, वो है होली स्पिरिट, वो है पाक रूह। इसीलिए जब हम कलाम पढ़ते हैं तो लिखा है शी इज बेटर देन रूबीज। जब आप प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ेंगे तो खुदा का रूह हमसे विजडम की पर्सोनिफिकेशन में होकर बात करता है। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह की जरूरत है जो विजडम है, हमें पाक रूह की जरूरत है जो विजडम है। और जब ये हमारे अंदर होंगे तो फिर हमारी वॉक जो है वो हमारी उड़ान में बदल जाएगी। फिर हम गिरते और ठेडे खाते हुए नहीं, फिर हम साउल की तरह भागते हुए जाएंगे। हालेलुया।
وہ کہتا ہے میں اس گول کی طرح، اس گول کی طرف جو خدا نے ٹھہرایا ہے میں بھاگتے ہوئے جاتا ہوں. اور صرف بھاگنا ہی نہیں ہے، آپ یاد رکھیں پھر خدا ہمیں ایک چیریٹ دے دیتا ہے، فائری چیریٹ دے دیتا ہے جس سے ہمارے پہیے لگ جاتے ہیں. 4 پہیے میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں جس سے ہماری واک خداوند میں تیز ہو سکتی ہے. پہلے نمبر پر یاد رکھیں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہے. یہ ہولی اسپرٹ کا ایک گفٹ ہے جو پہلا پہیہ ہے ہماری زندگی میں. اور وہ پتہ ہے کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ابھی چلنا بھی نہیں آتا، تب ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو. کس طرح سے انہوں نے کھانا ہے، کس طرح سے دوسروں کو گریٹ کرنا ہے، کس طرح سے انہوں نے ماں اور باپ کا حکم ماننا ہے. کیونکہ جو بچہ اپنے ماں باپ کا تابع دار ہوگا وہ اپنی بیوی کا اور اپنے سسرال کا بھی وہی ایسا ہی تابع دار ہوگا، اور وہ خدا کا بھی تابع دار ہوگا. اس لیے ڈسپلن از دا فرسٹ ویل وی نیڈ، اینڈ سیکنڈ ویل از نالج. آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں. دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ڈو از اسپینڈ ٹو یور چلڈرن. سینڈ دیم ٹو دا میوزک اسکول. جو کچھ بھی ان کے اندر سکلز ہیں ان کو باہر لے کر آئے. بینک بیلنس جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک آدمی نے بہت کمایا اور کہا اے میری جان کھا پی اور عیش کر، اور اسی رات موت کا فرشتہ آیا. بینک بیلنس کبھی کبھی ٹرسٹیز میں جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں گے، صحیح انویسٹمنٹ وہ ہے. ایجوکیشن دیں، ان کو نالج دیں، اور نالج کے بعد انہیں انڈرسٹینڈنگ دیں. اور انڈرسٹینڈنگ کس کی؟ خدا کے کلام کی. خدا کون ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از یور گول؟ آپ یہ بتائیں ان کو. یہ تیسرا پہیہ ہوگا. جب سمجھ آ جائے گی زندگی کی، اور زندگی کے جس حصے میں آ جائے گی وہاں سے اصل زندگی سٹارٹ ہوگی. میں 35 سال میں نے اپنی زندگی کو ایسے سمندر کی جھاگ کی طرح اور آوارہ گرد ستارے کی طرح گزارا، لیکن پھر جب مجھے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، تب میری زندگی کا صحیح مزہ مجھے آیا. ہاللیلویہ. اس لیے سمجھ جائیں کہ آپ اس دنیا میں کس لیے ہیں. یہ تیسرا پہیہ ہے آپ کی زندگی کا. اور پھر خدا جب آپ سے خوش ہوتا، آپ کو سمجھ آتی ہے، تو خدا وزڈم بھی آپ کو دے دیتا ہے. آپ کی زندگی پھر 4 پہیوں پر تیزی سے چلتی ہے، دوڑتی ہے، اور آپ برکت پاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور اگر آپ وزڈم میں، پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. برکت ہے، عزت ہے، دولت ہے، آرام ہے آپ کی زندگی میں. آپ کے ڈیسیژنز ونڈرفل ہیں. اور اگر آپ اس میں بھی وفادار رہتے ہیں تو ایک نیا سٹیپ شروع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیئر آف دا لارڈ. پھر خدا کا خوف اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزوں یاد رکھیں، پھر اس کے بعد ایک اگلا لیول ہے. اینڈ دیٹ لیول از مائٹ، دیٹ لیول از پاورفل لائف. پھر خدا آپ کو ایک زور بخشتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہمیشہ وفادار رہا، یہ ڈسپلن میں وفادار رہا، یہ نالج اس نے حاصل کیا، اس نے انڈرسٹینڈ کیا کہ ہو آئی ایم. اس نے وائز زندگی بسر کی، گڈ ڈیسیژن لیے، اور یہ ہمبل رہا. اس کے اندر خدا کا خوف رہا. اور اب میں اسے اور پاور دوں گا. اور پھر جو روح القدس کے گفٹس ہیں وہ ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ہم سپر نیچرل چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ تب بھی ہمبل رہیں تو یاد رکھیں وہ آپ کو لارڈ شپ کا تاج پہنائے گا. ہاللیلویہ. سن شپ. تب ہم حقیقت میں خدا کے بچے بیٹے کہلا سکتے ہیں. پھر ہم ایک پاورفل زندگی جس طرح خدا گزارتا ہے تب گزار سکتے ہیں. اور یہی 7 چیزیں مل کر وزڈم بنتی ہیں. آپ نے دیکھا جب ریولیشن کی کتاب میں جب یوحنا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے خدا کے تخت کو دیکھا اور اس کے سامنے ایک چراغ دان تھا، 7 روشنیاں اس میں سے چمک رہی تھیں، اور یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اور میں انہی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتا ہے میں نے ایک برہ ذبح ہوا دیکھا، اس کی 7 آنکھیں تھیں جو پوری دنیا کی سیر کرتی ہیں.
हालेलुया। ये यसाया 11 बाब की वो 7 रूहें हैं जो इंसान को वाइज बनाती हैं, जो लॉर्डशिप सिखाती हैं, जो आपको पावरफुल लाइफ देती हैं। और फिर मेरे जैसे बंदे की कमजोर तर जिंदगी, अभी मैं उसी स्टेप में हूं, विजडम में भी अंडरस्टैंडिंग मुझे आ गई है, विजडम के स्टेप में हूं, लेकिन जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अब मुझे नहीं पता आप किस लेवल पर हैं, खुदा आपको लाए 7वें लेवल पर, और ताकि हम सही मानों में विजडम के साथ जी सकें। फिर जिंदगी आसान होती है, फिर जीने का मजा आता है, फिर जिंदगी का एक मकसद जो है वो आप गुजारते हैं, और उसी मकसद को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। हालेलुया। याद रखें, आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें, टाइम दें, इन्वेस्ट करें उनके ऊपर, नॉलेज उनको सिखाएं, हर तरह का नॉलेज सिखाएं, हारमोनियम का, तबले का, जो भी दुनिया का नॉलेज सिखाएं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग दे। बेटा आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, खुदा कौन है, ये पहचानना बड़ा जरूरी है, और एक अच्छे डिसीजन लेना लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, और हम्बल रहना इसके बाद बड़ा जरूरी है। 3 चीजें मेरे उस्ताद ने मुझे बताई, बेटा याद रखना, बी हम्बल, नंबर 2 बी हम्बल, और नंबर 3 बी हम्बल। यही कामयाबी है। अगर हम अपने आप को कुछ समझेंगे ना, तो समझे हम अपनी ही निगाह में वाइज हैं। हालेलुया। इसलिए हम्बल रहना है, और जब वो गिफ्ट मिल जाएं तो शेखी नहीं मारनी, फिर भी हम्बल रहना है, खुदा के खौफ में रहना है। और फिर जब खुदा का खौफ होगा तो फिर खुदा आपके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता उन भेदों को खोलेगा और आपको पावर देगा, माइट देगा। जैसे अभी संडे को जब आप मीटिंग करेंगे तो यीशु के शागिर्दों को एक पावर मिली, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को खुदा का रूह मिला, और वो गैर जुबानें बोलने लगे, वो मौजज़ात करने लगे, वो शिफाएं देने लगे। हालेलुया। दिलेरी उनके अंदर आ गई। और फिर भी अगर हम वफादार रहे तो फिर लॉर्डशिप, सनशिप मिलेगी। इख्तियार खुदा आपको ऐसा देगा जैसा उसके बच्चों के पास होना चाहिए। और इसी ईमान में मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगले संडे पेंतिकोस्त की ईद आ रही है, खुदा से मांगे, विजडम को मांगे, खुदा के पाक रूह को मांगे, यीशु मसीह की प्रेजेंस को अपने आप में, अपने दिल के अंदर मांगे, वो आपको बरकत देगा। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद हम तेरे बच्चे हैं खुदावंद बाप, और खुदावंद हम पाक रूह को मांगते हैं खुदावंद यीशु बाप। यीशु हम तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं, तो हम पर अपना रहम और फजल कर दे खुदावंद यीशु, अपने रूह से भर दे खुदाम, विजडम से भर दे, और हमने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की हैं हम उसको ना दोहराएं, बल्कि खुदावंद हम तेरे खौफ में जिंदगी बसर करें, हम गुनाह से किनारा करें, और खुदावंद हम तुझे यस करें, हम तुझे यस कहें, हम तुझे अपने गले का तौक बनाकर पहने। खुदावंद तू हमारे दिलों में आ, और हमारे दिलों में तो अपना तख्त लगा, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन।